गोली मार दो सबको, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मार दो गोली। गुड़गांव में कंपनीज को बोल दीजिए कि मुसलमानों को हायर न करें। आप गुड़गांव में ये नोटिस लगा दीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि भाई वो मुसलमानों को हायर न करें, क्योंकि वो एक जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। हम लोग वीक में 40 नमाजें होती हैं हफ्ते में, हम अपने घर ৰাম ৰাজ্যৰ সপোন দেখুওৱা যোগী আদিত্যনাথৰ উত্তৰ প্ৰদেশত এবাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে ৰাৱণ। একাংশ ৰাৱণ ওলাই আহিল আৰু সেইসকল ৰাৱণে ৰাম ৰাজ্যক ধূলিসাৎ কৰি দিলে। কিয় কৈছো জানে? যে বিগত 20 বছৰৰ অধিক সময় ধৰি একাংশ মুছলমান লোকে মছজিদ নথকাৰ কাৰণে এটা পাৰ্কত নামাজ আদায় কৰি আহিছিলে আৰু শুকুৰবৰীয়া নামাজটো অৰ্থাৎ জুমাৰ নামাজটো তেওঁলোকে সেই পাৰ্কত আদায় কৰে সমূহীয়াভাৱে। আৰু সেই নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱাৰ সময়ত একাংশ উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী লোকে তেওঁলোকক নামাজ পঢ়াত বাধা দিলে আৰু নামাজ পঢ়াত বাধা দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে জয় শ্ৰীৰাম ধৰি দিলে। শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই এনেকৈ তেওঁলোকক শিকাইছে নেকি নেজানো, কিন্তু যোগী আদিত্যনাথে কিন্তু কৈছিল যে ৰাম ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিম আৰু সেই ৰাম ৰাজ্যত এনেকৈ ৰাৱণৰ সৃষ্টি কৰি দিয়া সকলোৱে জানে। কাৰণ এটাৰ পাছত আন এটা মগলিন সিং, এটাৰ পাছত আন এটা হত্যা হিংসা উত্তৰ প্ৰদেশত যোৱা বিগত প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি চলি আহিছে, সকলোৱে জানে। কাৰণ দলিত এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল আৰু সেইগৰাকী ধৰ্ষিতা নাৰীক পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিয়াও হৈছিল যোগী আদিত্যনাথৰ ৰাম ৰাজ্যত। আৰু সেই ৰাম ৰাজ্যত হিন্দু মুছলমানৰ কচৰত কৰি প্ৰভেদ সৃষ্টি কৰি পুনৰবাৰ ৰাৱণ ৰাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সপোন দেখিছে হয়তো যোগী আদিত্যনাথে। কিন্তু যোগী আদিত্যনাথৰ যে এইবাৰ পাল্লা ডুবি যাব, তেওঁৰ যে বেলি মাৰ যাব, সেয়া কিন্তু সকলোৱে জ্ঞাত। হয়তো তাৰ কাৰণেই পুনৰবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত হিন্দু মুছলমানৰ ক্লাছ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকে ৰাজপাট দখল কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। সকলোৱে জানে বিজেপি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ বাদে একো উন্নয়নমূলক ৰাজনীতি কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে। তেওঁলোকে দেশ কেনেকৈ আগুৱাই যাব সেই কথা নহয়, দেশৰ নাগৰিক কেনেকৈ আগুৱাই যাব সেই কথা নহয়, কেৱল মুছলমান মুছলমান হিন্দু হিন্দু এই দুটা শব্দ অৰ্থাৎ মুছলমান হিন্দু এই দুটা শব্দৰ বাহিৰে যে তেওঁলোকৰ মুখত কোনো ধৰণৰ শব্দ নাই, কোনো ধৰণৰ লেকচাৰত যদি আপোনালোকে পায় যে বিজেপিৰ কোনো নেতা পালি নেতাই হিন্দু আৰু মুছলমানৰ শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ তেওঁলোকে এটা লেকচাৰ দিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আচৰিত হোৱা যেন লগাটোই স্বাভাৱিক। কাৰণ আচৰিত হৈ পৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে যিমান লেকচাৰ্ছ তেওঁলোকে দিছে সকলোতে আপোনালোকে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ কচৰত তেওঁলোকক পাবই। আৰু একেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গুৰগাঁৱৰ কথা কৈ আছো। গুৰগাঁৱত বিগত 20 বছৰৰ অধিক সময় ধৰি সেই অঞ্চলৰ মুছলমান লোকসকলে জুমাৰ দিনা জুমাৰ নামাজটো আদায় কৰি আহিছিলে। কাৰণ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন অফিচ কাছাৰী কাম কৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত লাগি থাকে, দোকানপাট কৰে, ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে, আৰু সেইসকল লোকে নিজৰ স্থানত বা অঞ্চলটোত কোনো ধৰণৰ মছজিদ নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা পাৰ্ক নিৰ্দিষ্ট কৰি লৈছিল আৰু সেই পাৰ্কত জুমাৰ দিনাখন 15 পৰা আধা ঘণ্টা 15 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে নামাজটো একতাবদ্ধ হৈ অৰ্থাৎ সংঘবদ্ধ হৈ তেওঁলোকে নামাজ আদায় কৰি আহিছিল। আৰু সেই নামাজ আদায় কৰিবলৈ যোৱাৰ পাছতে একাংশ উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী ৰাম ৰাজ্যৰ পৰা ৰাৱণৰ বেগ লৈ ওলাই আহিল আৰু তেওঁলোকক নামাজ পঢ়াত বাধা দিলে। তাত উপস্থিত হ'ল পুলিচ প্ৰশাসন নকইনা হিচাপে তেওঁলোকে তাত থিয় হৈ থাকিলে। কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ হাতত নাই। তেওঁলোকে এনেকুৱা ভাৰত এখন ছেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি আৰু সেই ছেকুলাৰ কাণ্ট্ৰিত ছেকুলাৰ দেশখনত যোনে য'ত যি ইচ্ছা তাকে কৰিব আৰু সেইখিনি সুবিধা আজি ভাৰতীয় নাগৰিকে পাব পৰা নাই। সেই কথাখিনি কিন্তু আজি পুলিচ প্ৰশাসনে নিজৰ মুখেদি কৰিব নোৱাৰিলে, উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰিলে। আনকি এই কথাখিনিও নকলে যে বিগত 20 বছৰৰ অধিক সময় ধৰি এইসকল লোকে ইয়াত নামাজ আদায় কৰিছে। হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কোনো ধৰণৰ অত্যাচাৰ, তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ প্ৰভেদ নাই, তেওঁলোকে সমিলমিলে এই কাম কৰিছে। তোমালোকে 10জন 20জন মানুহ এটা ওলাই আহি এনেকৈ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কাজিয়া ঘটাব নোৱাৰা, এই কথাখিনিও ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰিল দেশৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া কৰ্মকৰ্তাসকলে। তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰক, দেশত আচলতে প্ৰকৃততে দেশত
চলিছে নেকি আইনৰ ৰাজ, চলিছে নেকি ন্যায়পালিকা? ন্যায়পালিকা ক'ত, আইন ক'ত, প্ৰশাসন ক'ত ৰাখিছে আৰু কেনেকৈ দেশ চলিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ কৰক। আপোনালোকে চাই লওক যে তাত কি হৈছিল সম্পূৰ্ণ ঘটনা। मतलब हर हफ्ते हम डीसी के हम आप ही लोग मतलब हैं हमारे, ड्यूटी लगाएंगे। हम आप ही तक पहुंच सकते हैं। हाँ हम चले जाएंगे। सर गोली मार दो ना, बेहतर तो ये है ना, हमें गोली मार दो सबको, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मार दो गोली। गुड़गांव में कंपनीज को बोल दीजिए कि मुसलमानों को हायर न करें। आप गुड़गांव में ये नोटिस लगा दीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि भाई वो मुसलमानों को हायर न करें, क्योंकि वो एक जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। हम लोग वीक में 40 नमाजें होती है हफ्ते में, हम अपने घर पढ़ते हैं। एक जुमे की नमाज नहीं होती, अकेले नहीं होती, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो आप प्लीज, मैं खट्टर साहब से और पीएमओ से और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ लाने के लिए जुगत करते हैं ना गल्फ से, आप मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस दे दीजिए उनको कि मुसलमानों को हायर न करें, सिर्फ हिंदू काम करेंगे गुड़गांव में। प्लीज आप ये कर दीजिए। आज बिल्कुल भी नहीं, भाई अड़े हुए हैं, आज बिल्कुल भी नहीं। देखो हम आज जोड़ रहे हैं खुले। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने मुझे ये दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष का या मुखिया का, कुछ भी आप कह सकते हैं। आज मैं वास्तविक में उपस्थित था और मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि रिकॉर्ड ब्यूरो आई कि आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आप घरों में वापस दूर जाएंगे। बिल्कुल 10 कदम पर विवेकानंद ग्लोबल स्कूल है, मैं उसका चेयरमैन की हैसियत से काम करता हूँ। आप सब वहाँ आइए, वहाँ पर बहुत बड़ा घास का मैदान है, वहाँ हमारे पास बढ़िया है, और जब तक आप नमाज अदा करेंगे मैं चाय और पेठे की व्यवस्था कर दूंगा। उनके पास जो लिस्ट है उसमें ये जगह नहीं है और उस पे आप ही के लोगों ने साइन किया है, तो मेन ये बात है उसमें। Sir, actually, I don't know about this. I am just working here. Okay, and this is only for 50 minutes for namaz. Okay, because यहाँ पे nearby में कोई मस्जिद नहीं है, ठीक है, इसलिए दूर नहीं जाया जाता है, ऑफिस इतना टाइम नहीं मिलता है, सिर्फ 50 मिनट के लिए यहाँ पे होंगे, ठीक है, फिर नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं है, ठीक है, सोसाइटी आसपास नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल एरिया है सर यहाँ पे। तो उनका ये तर्क है कि इस्लाम में ये लिखा है कि खुले में या कहीं पे जगह तो है ना, अपने ऑफिस में ही पढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर ये है मेरा। ऑफिस में इतना स्पेस नहीं मिला हुआ है ना सर, एक आदमी ठीक है, ऑफिस से फ्लोर होता है। गिनी चुनी मस्जिद है, हर जगह तो मस्जिद है नहीं ना, गिनी चुनी मस्जिद है। अगर हर जगह हो तभी तो, यहाँ पे कहीं पूरे इलाके में एक भी मस्जिद है नहीं है। तो हम यहाँ अभी ऑफिस से आए, यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, विदिन 15 to 20 मिनट बैक टू वापस चले जाएंगे। पढ़ने का हमें भी शौक जरा भी नहीं है। हम देखिए 5 वक्त का नमाज हम अपने घर पे ही पढ़ते हैं, सिर्फ जुमे की नमाज एक बार पढ़ने आती है, क्योंकि कम से कम 25-30 आदमी अगर होंगे, वो कह रहे हैं कि अकेले हो 25-30 आदमी होंगे तभी जुमे की नमाज होगी, मैं आपको बता दूं। और रही सवाल मस्जिद की, जो बोल रहे हैं कि मस्जिद में पढ़िए, हम मस्जिद में खुद ही पढ़ लेंगे, हम जाके पढ़ सकते हैं मस्जिद में, लेकिन हमें मस्जिद दिला देना। 12 मस्जिद, 25 लाख मुस्लिम। अभी कुछ ही दिनों से लफड़ा हो रहा है इधर, पहले कोई लफड़ा नहीं होता। अभी लोकल आदमी ऑब्जेक्शन उठाने लगे, सही हुआ है, सही है। सब मंदिरों में जाते हैं, अपनी मस्जिदों में जाते, ये रोडों पर हमला क्यों करते हैं? जो ये कह रहा था कौन है ये महावीर पाल, 10 मिनट में हो जाएगा। आप ही के गांव में हम रहते थे ना 20 साल से। आज बिल्कुल भी नहीं, भाई अड़े हुए हैं, आज बिल्कुल भी नहीं। देखो हम आज जोड़ रहे हैं खुले में नहीं, खुले में नमाज नहीं। खान साहब खुले में नमाज नहीं, हमें आपने हमारी बात माननी पड़ेगी। खुले में नमाज नहीं, आपने जो बिल्डिंग लेनी है सारी चीज लो, कोई दिक्कत नहीं, खुले में नमाज नहीं। क्योंकि अगर हमारी नमाज नहीं हो पाई ना, हमें बहुत रिग्रेट होता है। खान साहब हमें आधे घंटे का टाइम मिलता है। सब एक बात बताओ ना, जब अगर ये पिछले अभी 4 दिन पहले जो गए थे और लिस्ट आ ली, तो ये मसला इन 4 दिन के अंदर हल कर देना चाहिए। आपने बिल्डिंग ले लेनी चाहिए थी। नई अपडेट हुआ, इनको नहीं अपडेट होगा, इनके पास अपडेट नहीं था। वो अपडेट जो होगा वो जैसे भी होगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इनकी मीटिंग अभी लोग यहाँ पे वो भी डिसाइड कर लेंगे। अभी जो है जो इनसे सीनियर लोग हैं उनसे एक बार पूछ लेते हैं इनका क्या, इसकी रिप्लेसमेंट जगह कौन सी है, जगह इसकी हुई है ना डिसाइड, वो देखो। जो बुलाना है, तो जो दान पेटी पे स्कैन करके डोनेट कर रहे हैं, दान देने लग रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए थी कि भाई 3 दिन पहले ही ये बातचीत हो चुकी है कि यहाँ चिन्हित स्थानों के ऊपर नमाज नहीं अदा होगी। फिर ये आज का ये कार्यक्रम हो सकता ही नहीं, ये मसला झगड़े पर जाता ही नहीं, बदतमीजी पे जाता ही नहीं। ऐसे सोच नहीं करना चाहिए, ये सोच नहीं। जब सर आप एक सजदा नहीं करने देते, उसके बाद हम आपसे
होने देना, बहुत अच्छी बात है। हम प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं, ये नहीं होने देना, यही बहुत अच्छी बात है। वो दांत फाड़ रहे हैं, हमारे बड़ों के ऊपर दांत फाड़ रहे हैं। तमीज नहीं है इनको बात करने की कभी भी, बड़ा उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। भारद्वाजी नाम इनको मौलाना जी बोल रहे हैं, महावीर जी को बोल रहे हैं। महावीर जी कौन है? ये सब बोल रहे हैं, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। महावीर जी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे घर से हैं वो। बोलने की तमीज नहीं है आपको बिल्कुल भी। हम मौलाना जी कर रहे हैं, आप लिस्ट ले लो। हम इनों से मिलजुल की बात कर सकते हैं। जब अलग अलग जगहों पे आपत्ति हो रही है तो क्यों बार-बार? सर मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलूँगा सर। इनों के साथ मीटिंग स्थानीय लोगों को आपत्ति है, स्थानीय लोगों को जब आपत्ति है सर, हम यहाँ मजबूरी की हालत में पड़ रहे हैं सर। क्या ऐसा मजबूरी? मजबूरी क्या, मस्जिदें है नहीं यहाँ, 12 मस्जिद हैं और इतने सारे ये ऑफिस वाले ही बंदे हैं सारे। ये सब ऑफिस वाले ऑफिस वाले बंदे हैं जो आप कहाँ काम करते हैं आप? यही कराई में रहते कहाँ पे? हैं, कराई में रहते हैं। ऑफिस कहाँ है आपका? बिल्डिंग में काम करते हैं। कहाँ से आप? पैसे बरेली से बोलो। हर जगह पे आपत्ति हो रही है, तो क्या मतलब मस्जिद की या नमाज पढ़ने की जगह दे, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहा है। आज हम यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं इस इलाके में, लेकिन हमारे लिए कोई मस्जिद नहीं, जगह नहीं नमाज पढ़ने की। मस्जिद नहीं है? मस्जिद नहीं है यहाँ पे, है तो बहुत दूर पड़ता है मस्जिद। नॉट समथिंग न्यू, मतलब इट इज इन लॉन्ग टाइम वी आर प्रेइंग ओवर हियर। काफी टाइम हो चुका है, बट स्टिल आई डोंट नो सडनली क्या हो रहा है। ओपन में अगर दिक्कत हो रही है आसपास के लोगों को, तो घर में दिक्कत तो हम कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी नहीं करते तो दिक्कत नहीं है। वैसे तो होली, दिवाली, सारी चीजें रोड पे ही होती हैं, उसमें भी तो सड़क पे होता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। क्या कह रहे हैं? ये लोग चाहते हैं हम गुड़गांव ही छोड़ के चले जाएंगे सर। मैं 2005 में आया हूँ। अगर इनको एतराज है हमारी नमाज से, हमें सच नहीं, वो कह रहे हैं मस्जिदों में पढ़े। सर है ही नहीं मस्जिद, मस्जिद नहीं है ही नहीं। मैं ये कहता हूँ पूरे गुड़गांव में जितने मुसलमान अगर ये चाहते हैं तो हम छोड़ के चले जाते हैं। समझौता फेरा के बैठने लग जाए। भाई साहब एक बात बताओ ना, जब खुले में ही सारी चीज करनी है तो मंदिर मस्जिदों के गुरुद्वारों की जरूरत कहाँ है? बंद करो, सब पे ताला लगाओ। जो लिस्ट दिखाई है उसमें ये पार्क नहीं है। नहीं है ये पार्क, लिस्ट दिखा दी हमने। और इन्हीं के साइन है, इन्हीं के ईमानों के साइन भी है, उसमें सबसे रहना है। सुनो मेरी बात, दिल्ली में घुसे, आधा दिल्ली कर दिया खराब, विवाद पूरा खराब कर दिया जी, यूपी आधा खराब कर दिया जी, बंगाल पूरा खराब कर दिया जी। एक बात बताओ जी, इस्लामिक विचारधारा हमारे अंदर घुसा दी, घर घर बिरयानी की दुकान खुलवा दी जिनने। सुन लो मेरी बात ने, अब क्या है कि हमारे छोटे छोटे स्थान बड़े हैं जहाँ बच्चे बड़े बूढ़े घूमने आते हैं, यहाँ भी ये नमाज पढ़ने लग जाओगे। और इनके इस्लाम की, भाई साहब सुनो मेरी बात, 1 मिनट रुको, इस्लाम की एक भी किताब के अंदर ये दिखा दो जहाँ पे लिखा हुआ है कि खुले में नमाज पढ़ो, एक भी दिखा दो जी। और सुनो मेरी बात, 57 भाई साहब 57 देश है इस्लाम के, 57 देश है, एक भी देश के अंदर ओपन में खुले में नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है जी। ये भारत के अंदर क्यों है? क्या जरूरत है मस्जिदों की? और फिर हमारे से पूछते जी तकलीफ क्या है? भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े बूढ़े हो, कहाँ जाएंगे? हम अपने घर में भी घूमने लायक नहीं रह जाएंगे कहाँ जी? ये बताओ आप मेरे को, सवाल जवाब कहाँ तक करेंगे जी? हम यहाँ नहीं पढ़ने देंगे जी। और हमें ना सरकार को एक फिर दोबारा दबाव डालेंगे कि मस्जिदों में पढ़ी जाए जी, खुले में बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। और ये तो अब गुड़गांव का मसला है जी, पूरे भारतवर्ष के अंदर यही रूल होगा जी, खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जी। इनका जो तौर तरीके देखे आपने, बात कर रहे हैं ये खुले में पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? ये जो हमारे बड़े हैं उनको कह रहे हैं भारद्वाज, इनको तमीज नहीं है चीज लगाने की, हम इनको फिर भी कह रहे हैं मौलाना साहब, इनको तमीज नहीं है बोलने की। तो भाई साहब हम बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। अब तो प्यार से मसला हो रहा है जी, और अगली बार शक्ति प्रदर्शन से भी होगा, ये बात आप ध्यान में रखना। हिंदू ना कभी कमजोर था ना कभी होगा। सनातन धर्म का मतलब क्या है जी? जिसका आदि अंत, और जी लास्ट तक। ये शुरुआत हम नहीं करते लेकिन एंड हम कर देंगे जी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देंगे। जय श्री राम। अच्छा, हिंदुओं पे आरोप लग रहे हैं कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं। हिंदुओं पे तो जी आरोप लगते हैं, हम नफरत फैला रहे हैं। एक बात बताओ जी, मेरी बात सुनो, शाहीन बाग हिंदुओं का था जी, जो ये इतने बड़े बड़े मोटे मुद्दे होने लगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता अपने मुंह से, ये हिंदू कर रहे हैं जी। हिंदू तो सनातन धर्म क्या है जी? शांति का प्रतीक है जी। हम लोग कभी शुरुआत नहीं करते, कभी हमने आपको देखा हो कि मुसलमानों के एरिया के अंदर या किसी और एरिया के अंदर हमने बदतमीजी करी हो, अराजकता फैलाई हो। हम अपने जिगाम इनको अपने घर में रख रहे हैं इनको। वो कह रहे हैं मस्जिदें नहीं है। कौन कह रहा है मस्जिदें नहीं है? 12 मस्जिदें हैं, लिस्ट देखो ना जी, 12 मस्जिदें गुड़गांव के अंदर, जाते नहीं है। इन्होंने क्या कर रखा है जी? आपने यहाँ नहीं देखा स्कैनर देखो जी, ये क्या करते हैं? स्कैनर के माध्यम से डोनेशन लेते हैं जी। ये दान पेटी का क्या मतलब है? यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं, पैसे इकट्ठा करने आ रहे हैं? इनसे पूछो ना जी, ये दान पेटी किस लिए है जी? वो कह रहे हैं जब आपके बड़ों ने, मौलाना ने उस पर साइन किया है, तो फिर जब ये जगह नहीं है उस लिस्ट में, तो क्यों यहाँ पे आप लोग
आपके बड़ों ने साइन किया कम्युनिटी को नहीं पता किन लोगों ने साइन किया। आरएसएस के एक मंच के एक वो है प्रवक्ता, उन्होंने जाके साइन कर दिया है उस डॉक्यूमेंट को, आपको पता है होना चाहिए। मतलब हर हफ्ते हम डीसी के हम आप ही लोग मतलब हमारे ड्यूटी लगाएंगे। हम आप ही तक पहुंच सकते हैं। हाँ हम चले जाएंगे। सर गोली मार दो ना, बेहतर तो ये है ना, हमें गोली मार दो सबको, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मार दो गोली। गुड़गांव में कंपनीज को बोल दीजिए कि मुसलमानों को हायर न करें। आप गुड़गांव में ये नोटिस लगा दीजिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि भाई वो मुसलमानों को हायर न करें, क्योंकि वो एक जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते। हम लोग वीक में 40 नमाजें होती हैं हफ्ते में, हम अपने घर पढ़ते हैं, एक जुमे की नमाज नहीं होती, अकेले नहीं होती, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो आप प्लीज, मैं खट्टर साहब से और पीएमओ से और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ लाने के लिए जुगत करते हैं ना गल्फ से, आप मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस दे दीजिए उनको कि मुसलमानों को हायर न करें, सिर्फ हिंदू काम करेंगे गुड़गांव में, प्लीज आप ये कर दीजिए। क्यों हम उसी खालिक, उसी मालिक, उसी अल्लाह कि जिसने इस कायनात को सजाया है, उसी के मानने वाले। दूसरी खुशी की बात यह है जो आज पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, जहां हम बैठे हुए हैं ये नमाज की जगह है और इसे जा नमाज कहते हैं, यानी नमाज की जगह। उसी फर्श के ऊपर यहाँ सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी हैं, इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले भी हैं, सिख धर्म से ताल्लुक रखने